Hello everyone. As you all know that we from ACE Tutorials have taken an initiative to make a last 15-day revision plan for you all. कि अगर तुम्हारा कोई subject रह गया है and still you find it tough कि भाई कैसे complete करें. So we are here presenting you a 15-day plan with which you can easily cope up with the subjects which are remaining. Now it is clear कि भाई 15 days अगर बाकी है तो we are not just going to study one subject at a time. But in case अगर तुम्हारा एक आध subject रह गया है, थोड़ा पीछे छूट गया है, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देके 15 दिन में कैसे फिनिश कर सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू strategize today in this video. Okay, so if we begin with the subject company law and practice, you know that is divided into two parts, part 1 and part 2. Part 1 is of 60 marks. It has 12 chapters in it, right? And part 2 is of 40 marks. It has 7 chapters in it, right? So in general, if somebody asks me, okay, sir, where should we put more focus, then my clear-cut answer will be focus on part B, even if it is of 40 marks, right? See, the reason why I'm saying part B is because it is more of practicalities, right? And since it is 40 marks and the number of questions which you are going to solve is less, okay? If you consider 60 marks, which is of part A, there probably you are going to solve 4 3s are approximately 12 questions you are going to solve. Approximately 12, not even 12, I think it should be 14 questions according to me. For 13 to 14 questions you will be solving in part A, whereas in part B you are just solving 8 questions. Okay, so if you solve 8 questions, you are getting easily covering up your 40 marks, and that is the reason I am saying put more focus on part B, because part B is bit challenging but it is much of conceptual. Okay, plus when you have a case study in both the parts, it becomes very easy to score. Okay, right? So let's start with this chapters one by one. What we have is, as you can see, I've already written the name of the chapters. Now few chapters are there wherein we can finish those chapters in 2 to 3 days. Okay, I'm just going to focus on part 1 first. I'll tell you which are the chapters which you can do it in 2 to 3 days by giving just 6 to 7 hours of that day. So I'm not asking you to sit for whole, if you remove 8 hours of your sleep, so you still get 16 hours. So I'm not asking you to study 16 hours, that one single subject. I know you have to prepare other subjects as well. So just keep 6 to 7 hours a day for 3 days, first 3 days, and you will be done with 3 to 4 chapters, which I will say this right now. Okay, so whenever you start your part A, always start with this chapter first, charges. One of the easiest chapter in part A. Okay, you start with charges, right? Then once you finish charge, you go with this distribution of profit dividend. Now these 2 chapters, if you have done even one time study till now, एक बार भी अगर पढ़ लिया है, then it is a kind of revision for you, and you can finish both these chapters in one day if you sit for 8 hours. In one day, if you sit just for 8 hours, you can finish both these chapters. Chapter number 7 charges and chapter number 8 dividend. Okay, so let's consider के तुम्हारा एक दिन हो गया and you have done with 2 chapters, right? So day 2 में what you can take is legal status of registered company. See, I will write here day 1, right? Day 1 में तुम्हारे 2 chapter आराम से हो जाएंगे if you sit properly for 8 hours of study. Okay, no here and there, make sure you sit properly for 8 hours a day, right? तो ये तुम्हारा हो जाएगा. Then what you have is this chapter, legal status. इसको तुम लोग day 2 दो. This can be easily done in 5 to 6 hours. Now why am I saying hours? Because as you all know, तुम लोग के बाकी subjects भी है जो तुम लोग को finish करने हैं. So मैं ये नहीं चाहता कि बस 15 दिन खाली company law ही पढ़ते रहो तुम लोग. I understand you have to cope up with other subjects as well. So अगर in case company law तुम्हारा ज़्यादा बाकी रह गया है, then this will be useful. Okay? Now, तो तुम्हारे 2 दिन तो हो गए. 2 दिन में तुम्हारे 2 chapter हो गए. We are just focusing on 3 days. First 3 days right now. Okay? We still have 15 days. Means we still have overall 15 days. Now जब day 3 पे आओगे ना, you take this MOA and AOA. Right? Again 7 to 8 hours में ये chapter हो जाएगा अगर तुमने एक बार अच्छे से पढ़ के रखा है तो. Now see, all these things I am saying considering कि तुमने एक बार classes में सिखाते वक्त थोड़ा बहुत भी आधा भी पढ़ लिया है तो भी it is useful for you. First time reading कर रहे हो तो it is going to be bit tough to finish these chapters in 7 to 8 hours. But let's assume कि since exams are near, तुमने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा. So
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, सो यू कैन फिनिश दिस इन 7 to 8 आवर्स। तो तुम्हारे 3 दिन का टारगेट तो यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, नाउ डे 4 and day 5 we will give 2 days for one chapter, that is this share and share capital, day 4 and 5. This is one of the most important chapter of part A and it is very big. अगर तुम्हें पता हो तो इस chapter के अंदर you have 5 parts, part A, B, C, D, E, okay, and very lengthy chapter as well, right? So तुम लोग 2 दिन में ये कवर कर सकते हो। okay, so we are done with 5 days, right? Now day 6 you take whichever chapters you want. तुम ऑडिट ले लो, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है, ये भी तुम्हारा आराम से हो जाएगा डे 6 में। ओके, अकाउंट्स एंड ऑडिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की अगर मैं बात करूं, सो अकाउंट्स में यू फोकस ऑन सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन सेक्शन 130 रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एनसीएलटी, then section 131 voluntary revision of books of accounts, that is voluntary revision of financial statements and board report, 131 हो गया, right? this 128, 130, 131, ये 3 सेक्शन अकाउंट्स के रिलेटेड है। ओके, देन 136, 137, 136 क्या है? तो राइट टू कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड देन 137 इज फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द आरओसी। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें याद हो तो जिसमें तुम लोग AOC 4 वगैरह सबमिट करते थे, यू हैव टू फाइल दैट AOC 4 विद द आरओसी विद इन 30 days ऑफ AGM, वो पूरा सेक्शन 137। सो अकाउंट्स के चैप्टर में 5 सेक्शंस के ऊपर फुल फोकस रखना, एंड देन यू कम ऑन द ऑडिट। ऑडिट में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन से लेके अपॉइंटमेंट के टर्म्स, दोज डेज, 30 days, 90 days, देन 60, 30, 60 days, यू नो, गवर्नमेंट कंपनी एंड ऑल, ये सारे डेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो दोनों, एक ये चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें पूरा एक दिन चला जाएगा तुम्हारा। ओके, सो बाय डे 6 यू आर डन विथ हाउ मेनी चैप्टर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6. By 6th day you have done with 6 chapters, right? Now day 7 we will take these 2 chapters. Okay, now in this case day 7 I want you to give full day, because these 2 chapters will not be able to be done in 7 to 8 hours. तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना। ओके, क्योंकि सी भले ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, बट इस डेट इंस्ट्रूमेंट्स को मैं 2 चैप्टर कंसिडर करता हूं। वन विल बी डिबेंचर्स एंड अदर विल बी डिपॉजिट्स। सो मार्क करने में भले ही मैंने 2 चैप्टर मार्क किए, चैप्टर नंबर 5 और 6, बट कंसिडर दिस 2 चैप्टर्स एज 3 चैप्टर्स। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, जो कि बहुत ईजी है, आराम से 2-2.5 घंटे में तुम्हारा हो जाएगा आराम से, राइट? इट इज कंप्लीटली थियरी, कुछ ज्यादा कंप्लायंस बेस्ड चैप्टर नहीं है। ओके, एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स विल टेक टाइम, इसमें डिबेंचर्स के रिलेटेड आएगा एंड डिपॉजिट्स के रिलेटेड आएगा। सो कंसिडरिंग थोड़ा टाइम जाएगा तो इसमें एक पूरा दिन शायद तुम्हारा लग जाएगा। ओके, नाउ जब डे 8 आएगा, ओके, तो तुम लोग यहां से तो हमारे सारे चैप्टर हो गए। डे 8 में लेट्स फोकस ऑन दिस compromise and arrangement. This is one of the important chapter as well, थोड़ा tricky भी है। इसके अंदर तुम्हारे merger amalgamation के sections आएंगे, section 230 compromise and arrangement, then 231, 232 merger amalgamation, 233 merger amalgamation of certain companies, ये सारे sections important है। Okay, right? So day 8 पूरा एक दिन तुम लोग give it to this chapter. Then day 9 में तुम लोग dormant company एंड इंट्रोडक्शन कर सकते हो। डॉर्मेंट कंपनी, आई मस्ट से इट इज अ मैटर ऑफ 1 hour, दैट्स इट। 1 घंटे में तुम्हारा डॉर्मेंट कंपनी आराम से हो जाएगा। सीरियसली बैठोगे ना, सीरियसली 1 घंटे में डॉर्मेंट कंपनी डन है तुम्हारा, राइट? एंड इंट्रोडक्शन भी, इट विल नॉट टेक मच टाइम। इंट्रोडक्शन में मोर फोकस ऑन डॉक्ट्राइन्स, ठीक है? ये डॉक्ट्राइन्स तुम्हारे SBEC में भी काम आएंगे तुम लोग को, right? This will be useful in SBEC as well. Doctrine of ultravirus, doctrine of constructive notice and all, right? That is SB, not EC तो नहीं बोल सकता। Setting up of business entities and labor law, SBLL, something like this. Setting up of business and labor law, SBLL. तो SBLL में काम आएगा, right? So here we have done with 9 days. Now we still have 6 days in our hand.
नाउ जो 10th डे है उसके लिए तुम लोग पूरा ये चैप्टर यूज करो. दिस इज न्यूली एडेड चैप्टर इन द न्यू सिलेबस. ये पहले नहीं होता था, ठीक है, ये चैप्टर पहले नहीं होता था. सो फॉर दिस यू गिव फुल 1 डे, डे 10, एंड लास्ट 5 दिन में आराम से पार्ट बी तुम फिनिश कर सकते हो, आराम से. ओके, जिसमें से फिलहाल इसको इग्नोर, फिलहाल फॉर टाइम बीइंग इसको इग्नोर करके रख देते. फॉर टाइम बीइंग, नॉट कंप्लीटली, टाइम बीइंग इसको इग्नोर करके रखते. सो हमारे सामने 6 चैप्टर है. ओके, वैसे 7 है, बट आई एम इग्नोरिंग दिस चैप्टर फॉर अ व्हाइल राइट नाउ. सो इट मीन्स वी हैव 6 chapters in front of us. Now this chapter will take full 1 day. Agar, see this chapter, if you haven't studied directors till now, then it is going to create lot of trouble for you. So agar ek baar tumne पढ़ के रखा है, so you can easily revise in full 1 day, that is day 11 में ये पूरा हो जाना चाहिए. Okay, फिर जनरल मीटिंग्स डे 12 एंड बोर्ड मीटिंग्स. क्योंकि तुम लोग दोनों मीटिंग के बारे में पढ़ोगे, राइट, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग्स, राइट, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड जनरल मीटिंग, तो ये दोनों कंपैरिजन वाइज पे भी पढ़ सकते हो. सो यू नीड टू गिव डे 12 फॉर दीज 2 चैप्टर्स. अभी भी तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं? 3. नाउ तीसरे दिन तुम लोग ये कर सकते हो, दैट इज डे 13 में बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स. इसके अंदर मेजर फोकस होना चाहिए सेक्शन 165 के ऊपर. मेजर फोकस इस चैप्टर के अंदर मेजर फोकस होना चाहिए सेक्शन 165, राइट. लेट मी गिव यू अ नोटिस. सेक्शन 165, 180, 181, 182, ये कुछ सेक्शंस है जिसके ऊपर मेजर फोकस होना चाहिए इन दिस चैप्टर. एंड यस, इन दिस मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स कमिटीज, तो इसके अंदर वो सब कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा नोटिस, कोरम एटसेट्रा, इन सब चीज, फ्रीक्वेंसी, इवन फ्रीक्वेंसी, कितनी बार मीटिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें, राइट. पुट मोर फोकस ऑन दिस. ओके, देन यू हैव केएमपी विच यू कैन डू इट ऑन डे 14, राइट. केएमपी जो तुम्हारा चैप्टर है तुम डे 14 पे कर सकते हो, आराम से हो जाएगा. एंड दीज 2 चैप्टर्स, सीएसआर एंड एनुअल रिपोर्ट्स, ये तुम लास्ट डे पे रख सकते हो. CSR is very easy. इसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन आने वाला है, 135. You have only one section in this whole chapter and some rules with related to CSR. मेरे नोट्स भी पढ़ के जाओगे तो आराम से पास हो जाओगे. No need to worry, no need to study module at the end. ये जो भी मैं बता रहा हूँ, I'm explaining it on the basis of whatever I've taught you. And specially अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स हो और खाली रिटर्न नोट्स भी पढ़ के जाओगे तो भी आराम से पास हो जाओगे. But the thing is, तुम लोग को राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए. So once you are done with all these things, आराम से तुम्हारा 15 दिन में, without any hesitation, and see, in 15 days we are not even putting full 16 hours of the study what we have. 8 घंटा तुम्हारा सोने का मैं गिन रहा हूं. If you are sincere, तो 8 घंटा अगर तुम सो रहे हो तो बाकी के 16 घंटे तुम जितना हो सकता है उतना पढ़ाई में दे रहे हो. ओके, excluding all the, you know, excluding all such activities जहां पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, right? You exclude all those activities. So if you are sleeping for 8 hours, which is a good sleep, sound sleep, right? एंड तुम दिन के 16 घंटों में से चलो 15 घंटे भी दे देते हो, 1 घंटा तुम्हारा 2 टाइम का लंच, डिनर वगैरह. सो इफ यू कंसिडर 15 आवर्स ऑफ स्टडी, तो तुम लोग को पूरा 15-15 घंटा देने के लिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, राइट. आई एम सेइंग कुछ जगह पे मैंने बोला है, जहां पे मैंने आवर्स नहीं लिखे वहां पे फुल डे देना पड़ेगा, क्योंकि दोस चैप्टर्स आर लेंदी, राइट. एंड जस्ट वन थिंग, अगर तुम लोग को ये एक दिन में नहीं हो रहा, चैप्टर नंबर 14 तुम एक दिन में अगर फिनिश नहीं कर पा रहे, तो यू हैव टू प्लान आउट अकॉर्डिंगली. तुम लोग को एक दिन बचाना है, तो अगर एक दिन, तो इन दिस केस तो इसको तुम लोग 2 दिन दे सकते हो, राइट. यू कैन गेट 2 days फॉर दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी बिग, वेरी बिग. ओके, सो अगर लग रहा है कि नहीं यार एक दिन में नहीं हो रहा, इसको 2 दिन लगेंगे, तो फिर हम लोग को कहीं ना कहीं एक दिन का घटाना पड़ेगा. और वो एक दिन घटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? वी कैन डू फ्यू चैप्टर्स विच वी आर कंप्लीटिंग इन 2 days, दैट वी कैन डू इट इन 1 day. तो वो जो हम लोग एक दिन में कर लेंगे ना, तो एक तो चार्जेस याद रखना, एक ये डिविडेंड, ये प्लस साथ में तुम लोग MOA AOA फिनिश कर देना. सो इफ यू फिनिश इन 2 days, देखो एक्चुअली देखा जाए तो यहां पे, सॉरी इन 1 day, यहां पे एक्चुअली देखा जाए तो 2 दिन जा रहे, एक दिन MOA AOA के लिए और एक दिन चार्जेस और डिविडेंड के लिए. थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके अगर तुम लोग ये 3 चैप्टर एक दिन में कर लेते हो, ओके, या तो सो द कॉम्बिनेशन विल बी लाइक दिस. अगर तुम्हें दिन बचाना है
तो यू कैन डू इट लाइक दिस 3, 7, 8 इन वन डे, या तो जो मैं बोल रहा हूं अगेन, चैप्टर 1, 11, 7, 8, ये 1 और 11 जो है ना, डोरमेंट कंपनी और इंट्रोडक्शन, तो ये 4 भी तुम निपटा सकते हो एक दिन में। सो अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये डायरेक्टर वाले चैप्टर को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, विच इज द बिगेस्ट चैप्टर इन पार्ट बी, ओके, एंड देखो सबसे बड़े चैप्टर जो पार्ट ए, सबसे बड़ा चैप्टर पार्ट ए का है वो शेयर कैपिटल वाला है, एंड सबसे बड़ा चैप्टर पार्ट बी का है वो डायरेक्टर है। शेयर एंड शेयर कैपिटल मैंने ऑलरेडी 2 दिन दिए तुम लोग को, बिकॉज इट इज, इसमें ना थोड़ा रट्टा ज्यादा मारना है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा कम है, तो तुम लोग को थोड़ा मगअप करने में टाइम जाएगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस इन दिस चैप्टर, स्वेट इक्विटी के कंडीशंस, बोनस के कंडीशंस, डीवीआर के कंडीशंस एंड सो ऑन, ओके। बट टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स इट इज कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर तुम्हें उसको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो दैट इज द रीजन कि मैंने इसको पहले से ही 2 दिन दे के रखे थे, एंड इसको अगर तुमको लगता है कि 2 दिन देने पड़ेंगे, देन यू सिलेक्ट दिस। ये पैटर्न अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारा 1 दिन बच जाएगा, और वो जो दिन बचेगा वो तुम इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, राइट। फोकस प्रॉपरली ऑन वॉट एवर द थिंग्स यू हैव स्टडीड, दैट्स इट। कॉन्सेप्चुअल जितना होता है उतना करके जाना, प्लस एक जो लास्ट बोनस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो जो केस स्टडीज आने वाले तुम लोग के, दैट विल बी प्रोबेबली ऑफ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 to 35 मार्क्स के वो केस स्टडीज आएंगे। केस स्टडीज मतलब एमसीक्यू मत समझना, ओके। देयर विल बी अ बिग प्रैक्टिकल पैराग्राफ एंड सम questions will be asked based on the paragraph, so that will be manageable according to my knowledge, my experience। डायरेक्टली एक केस स्टडी सॉल्व करने से ज्यादा इजी पड़ेगा वो एक सिचुएशनल वाला केस स्टडी, जो तुमको पूरा पैराग्राफ देके रखा है, एंड पैराग्राफ के बेस के ऊपर तुम लोग को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट विल बी मच यूजफुल, ओके। प्लस जो पार्ट बी में आएगा वो होगा 15 से 20 मार्क के ड्राफ्ट्स, ओके। सो अगर ड्राफ्ट्स की बात करें, सो इफ यू नो हाउ टू राइट द ड्राफ्ट, जो कि मैंने सिखाया था, एंड इफ यू फाइंड के उसके साथ में जो दूसरे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टफ है, तो गो फॉर द ड्राफ्ट्स। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ड्राफ्ट्स के केस क्वेश्चन में जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें जो केस स्टडीज है, उसमें से तुम लोग को मैक्सिमम आ रही है, मतलब सपोज 4 पूछिए तो 3 आ रही है, पक्की आ रही है, देन गो फॉर द केस स्टडी ओनली। एंड अगर लगे कि यार केस स्टडी के थोड़े इश्यूज है, वी कैन नॉट, यू नो, वी आर अनेबल टू रिकलेक्ट द आंसर, देन इफ यू नो हाउ टू राइट द ड्राफ्ट, जो कि मैंने सिखाया था, गो फॉर इट, ओके। इट विल बी वेरी इजी, कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशंस रखना, दैट्स इट। एंड जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूंगा तुम लोगों को कि अगर तुम्हें क्विक रिवीजन करना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द मैराथन लेक्चर्स विच वी हैव ऑलरेडी placed on our YouTube channel. The link is in the description below. As well as अगर तुम लोग को full set of lectures purchase करने हैं तो भी discounted rates के ऊपर those lectures are available. अगर लगे कि तुम लोग को पूरा एक साथ पढ़ना है, तो you can purchase the lectures from our website also. The links are given in the description below. Any kind of doubts, anything, you can directly write it in the comments. I will personally revert to those comments if you ask any of the doubts. And जो मेरे students हैं उनके पास मेरे contact numbers भी है, so you can directly ask the doubts to me as well. And for outsiders, you can comment your doubts. And even the number will be provided in the description below. You can ask the doubts, whatever you have. Okay? Thank you very much.